सॉरी भाई। Can I please walk? सिगरेट लाए भैया। Thank you so much. Thank you. बाहर रहेंगे कोई अंदर बैठेगा नहीं पहले। बीवी आ रही है यार। बीवी आ रही है। यही पहुंच गई। अरे क्या करोगे? Music video. Yeah. Thank you for shooting the music video, sir. So फिर तो ये। अंदर। बुलाओ। Let's start. आजा। कभी कभी बंद दरवाजों से एक नया रास्ता खुलता है, वो रास्ता जो हमें एक नए मौके की, एक नई उम्मीद की तरफ ले जाता है। आज का मिला जीवन भर साथ नहीं छोड़ता है। Couple the rock stars and शाकिर, सुकन्या, पार्थ, इन सब की मेहनत, ठीक है। शबीर भाई and स्मृति in it. शरद भाई, please go ahead. First of all, congratulations everyone. Fantastic episode. Pradeep, congrats Amita. Superb content. फिर ये जोड़ी तो 14 साल पुरानी है. I love the episodes. Everyone is so good. It's fresh. It's Prateek. Congratulations. Please welcome Mr. sir. And always Prateek की हमेशा एक choice होती है म्यूजिक की. And तो इस शो के साथ 2 एक्टर फ्री में मिले हैं, तो एक गाना भी बनाया गाने के लिए फ्री में मिले हैं. दीवाना तेरा इज अ सॉन्ग sung by Javed Ali. And congrats Parth, it's your baby. Shakir, सुकन्या, everyone, congratulations. बहुत प्यारा गाना है, मैंने सुना है. इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने इसके कुछ ग्लिम्स देखे होंगे, मीडिया में आए थे. You both are looking beautiful.
So can we watch the song? Yes, Yeah, please do. please. यहाँ तो बोलने का मौका मिल रहा है बेटे यहाँ तो बोलने दे बोलो कुछ तो बोला. Big congratulations. मैं आजकल actually C dramas देख रही हूँ, but I think I'll get hooked onto this one because it's really nice. A big congratulations to all of you. Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे शब्बीर जी मुझे होस्ट बना दो एक काम करो Firstly, welcome everyone. It's a very important day for all of us. बहुत मेहनत चल रही है पिछले 25 दिनों से, एक महीने से. और 25 दिन हुए. हाँ, और उसका नतीजा आप लोगों ने आज देख लिया है. It's a team effort. Everyone's done a fabulous job. मेहनत सब कर रहे हैं और वो ही मेहनत रंग लाई है, hopefully. And thank you for being here and thank you for being a part of this really amazing show that we all enjoy doing so much. And hopefully the journey just is more beautiful than the way it has begun. So congratulations everyone and thank you. Thank you guys. Poetry. Happy birthday to you. Thank you guys. Thank you for being here. Have fun. So can we have the song please? Okay guys, enjoy the song. नथुराम जी मोमेंट एंड क्योंकि हम सब एक दूसरे के चीयर लीडर हैं, हमें ये लगता है कि हम कभी खराब काम कर ही नहीं सकते. सो वी कीप ऑन पैटिंग आवर बैक, बट like right from our actors to our entire team, there is one great addition to our team that has helped us shape this show. It's Star Plus, the channel that has helped me stand here in front of you, the channel that is where I was born as a creator. So yeah, to the entire team of Star Plus and the people who have made this show shoulder to shoulder, holding our hands when we faltered, Ajay, Riya, Ritvija, Huma, Kosha. Ritvija, khadi ho jao. So these are the people who have really shouldered the responsibility of getting these two iconic people to be a part of the journey and how we can justify having them in the show. Deepak is not amongst us right now, but he's very much there enjoying his holiday. He's not here. So yeah, Deepak was my boss. I have learned everything from him. There have been a couple of other bosses, but उनके बारे में भी बात नहीं करेंगे. They are not a part of Star Plus. So thank you guys, thank you so much for giving us this beautiful show. Thank you to each and everyone who is a part of the show. Thank you to each and everyone who is part of Tumse Tum Tak. Thank you to each and everyone who has been a part of all the 19 shows that we are doing since 2016. And a special mention for LSD music team, Chakir Sukanya. Guys, fabulous. T-Series is our target. Dinner is ready. Please सब लोग dinner लेके जाइएगा. मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ यार? मैं नहीं हूँ शो में. आप भी आओ. भाई मैंने आते से ही ढूंढा तो मुझे दिखाई नहीं दी. कैसी है तू? एक साथ ले लो ना. आप लोग एक साथ आ जाइए और एक साथ जो है पूछ लीजिए प्लीज. तो भाग गई जी जी.
प्यारी जोड़ी 16 साल आपने कहा 16 साल से वो जोड़ी फेमस है तो उस शो के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बिल शब्बीर श्रुति साथ में भी शो किया उन लोगों ने और बहुत 7-8 साल शो चला वो और लोगों ने बहुत पसंद किया उस जोड़ी को और वो वापस आ रहे हैं। और मैंने इनफैक्ट जब इनका शो लॉन्च पोस्टर लॉन्च हुआ था या कुछ टीज़र था मैंने यही लिखा था आई थिंक इंस्टा पे विश करते हुए कि ये प्रतीक शर्मा ही कर सकता है, वो उन सेलेस्डी। तो ये प्रतीक का ही काम है दोनों को साथ में लाने का एंड वो ऐसे अजूबे करता रहता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लिखता है, म्यूज़िक बहुत अच्छा सेंस है उसका, इमोशनल पकड़ बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। द जोड़ी इज़ बैक, तो होप यू गाइज विल वॉच इट। और जोड़ी 14 साल के बाद आए और आप भी 2 साल के बाद नहीं है यार, मतलब ये दे स्टार्टेड अराउंड 10 to 14 years बैक। बहुत तजुर्बा वाला आर्टिस्ट हो तो आपको क्या हाँ, मुझे 22 साल हो गए। हाँ, लगता है उस जोड़ी को देख करके? अरे बहुत हिट है यार, बहुत दोनों ही। देखो क्या होता है ना, जब दो एक्टर कंफर्टेबल हो, उनके बीच की कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, पहले एस्टैब्लिश जो लोग जानते हैं। आप देख भी होंगे फर्स्ट एपिसोड में इतना बहुत मुश्किल होता है एक हीरो हीरोइन के बीच में वो एक केमिस्ट्री बिल्ड करना, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट सीन इटसेल्फ वो केमिस्ट्री दिख रही है, क्योंकि दोनों जानते हैं एक दूसरे को अच्छे, जैसे उनका वर्किंग पैटर्न पता है, उनके इमोशंस के बारे में आइडिया है। तो एडवांटेज होता है कहीं ना कहीं एक शो के लिए कि अगर दो एक्टर साथ में काम कर चुके हैं पहले और दोबारा आ रहे हैं, तो इट्स ईजी फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो फॉर द होल टीम कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। जहाँ तक अभी कहानी की, तो प्रतीक शर्मा जी जो भी कहानी लिखते हैं बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत अच्छा उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्ट होता है। तो वो इस शो में भी होगा, जैसा तुमसे तुम तक में है, अलग कहानी है, ये भी अलग कहानी है। एंड आई वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। लोग पसंद करेंगे, मुझे तो ये लगता है, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान की ऑडियंस इतनी तो कम से कम वो हो गई है अभी कि वो अच्छा कंटेंट देखना पसंद कर रही है। और आप देखेंगे हर ना सिर्फ एक चैनल पे, हर चैनल पे एक कुछ ऐसा शो होता है जो कंटेंट वाइज बहुत अच्छा होता है और लोग वो देखना पसंद करते हैं। पर देखा जाए तो तुमसे तुम तक को भी इतना प्यार मिल रहा है, फैंस इतना प्यार दे रहे, इवन तो दोनों की जोड़ियों को इतना पसंद किया जा रहा है जब ये सारे प्यार देखते, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा यहाँ पे शूट होने से पहले ही एडिट कर जाते हैं, फैंस के इतने प्यार दिखते हैं। हाँ, क्या कहना चाहोगे? वो कमाल है यार, मतलब मुझे तो समझता है कि लोग एडिट कैसे बनाते हैं। मैं तो आज भी बड़ा ये मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इलिटरेट आदमी हूँ मुझे तो नहीं आता है सब करते, बट इट्स सो वंडरफुल टू सी ऑल द एडिट्स। वो म्यूज़िक डालते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग बुरे भी बनाते हैं AI के थ्रू, आई डोंट नो, बट आई डोंट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, बड़ा प्यार देख के अच्छा लगता है। एंड यू नो स्पेशली क्या होता है ना, जब आप इतना टाइम बाद आप टेलीविज़न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में भी उम्मीद होती है कि यार सात फेरे किया है या ये किया है वो किया है, ये शो कैसा होगा। दो आई न्यू की कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट जो प्यार दिया है लोगों ने वो ओवरवेलमिंग है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी भी कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ मीडिया में या सोशल मीडिया पे, मैं काफ़ी इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट आती है लाइव आइए या मीडिया में इंटरव्यूज़ दीजिए, मैं थोड़ा सा उस मामले में इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आप पर्सनली मिलेंगे मुझसे तो मैं कम्प्लीटली आई थिंक ऑपोजिट हूँ। हाँ जी, करेक्ट। मैंने अब क्योंकि मैं शूटिंग से भाग के आया हूँ, मैंने गाड़ी में देखा, तो आई वांट टू वॉच इट अगेन एक बार, बट लग तो बहुत अच्छा रहा है। सर शो के साथ साथ गाना भी रिलीज हुआ है, गाने के बारे में जावेद साहब ने गाना गाया तो अच्छा ही गाया है ऑब्वियसली, एंड दे बीन डूइंग म्यूजिक LSD काफ़ी टाइम से, और जब इतना सुंदर पेयर अगर ऑन स्क्रीन हो तो गाना और भी खूबसूरत लगता है। वेरी वेल शॉट, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। मेरी बीवी भाग जाएगी। थोड़ी जगह देना घूम लेके जाने के लिए आगे। जी कैसे हो? Live on YouTube. I will watch it. हाँ, वो तो पहले बात कर देख लूँगा। फिर बोलता कि 8:30 नहीं वो पहुँच रहा, वो 10 मिनट में आ जाएगा। हमने देख लिया। कहाँ थे आप? लेट हो गए। बस कहाँ थे आप? लेट हो गए अश्नू जी का भी नेक्स्ट मंथ बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे एडवांस।
बर्थडे बीके सिंह ने बर्थडे एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पे सामने लाइट वाला कैमरा। हाँ यही बस यही है। देखा ही नहीं। थैंक यू। बस हो गया। तो हमने बस शो का आज लॉन्च हो गया है। फर्स्ट एपिसोड देखा हमने, आपके साथ सेकंड एपिसोड भी देखा। क्या कहना है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इतनी फेमस जोड़ी जो कि मेरी भी फेवरेट रही है, मैं जब स्कूल में थी तब मैं इस जोड़ी को देख के बड़ी हुई हूँ, तो इतनी फेवरेट जोड़ी मेरी वापस पर्दे पे आ रही है इतने सालों बाद, इतने सालों का अच्छा हिट शो देने के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर क्रिएटिंग मैजिक ऑन स्क्रीन। और मैं उनकी बहन का रोल कर रही हूँ, आराध्या नाम है मेरा, मैं श्रुति जी की बहन का रोल प्ले कर रही हूँ इसमें। तो बहुत ही प्यारा रोल है, मतलब जैसे श्रुति जी है उनकी जस्ट ऑपोजिट हूँ मैं, और बहुत ही हमारा बहनों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है शो में। तो आगे आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो आई एम प्लेइंग आराध्या, हु इज़ अपू दी, मतलब अपराजिता जो प्ले कर रही है श्रुति जी, उनकी मैं सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ। इसका नाम आराध्या है और बहुत ही चुलबुली, फन लिविंग टू द फुलेस्ट वाली लड़की है। अभी मेरी इसी शादी के सीक्वेंस से ही अपना ये शो शुरू हुआ है। मेरी शादी तिलक के लिए आई, बट अभी शादी होगी, क्या होगा वो सब एक ट्विस्ट है जो आपको आगे देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पेशली अभी तक हमने ज़्यादातर काम श्रुति जी के साथ किया है, तो बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही लविंग, एंड ऑफ स्क्रीन भी आई फील like she's my elder sister. Who's your favorite character in the series? My favorite character is Shriti ji, Aparajita, because she's playing my sister and we have developed a bond. हमारा bond बहुत अच्छा हो गया है, on screen भी, off screen भी, तो we enjoy a lot. Thank you. मैं सरप्राइज़ बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट एपिसोड रीड भी नहीं किया है, और मैंने जब ये देखा तो पर्सनली आई स्टे अलोन इन बॉम्बे फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, और जब मैंने ये एपिसोड देखा तो बहुत रिलेटेबल लगा, बिकॉज़ फीमेल को कोई पूछता नहीं है कि आपको कुछ ज़रूरत है या नहीं, और मेल की तरफ से ये जेस्चर आना कि यू नो आई डिड दिस, टेक दिस हेल्प, ये बहुत बड़ी बात है। शायद मर्दों के लिए ये आम बात नहीं होगी, लेकिन एक फ़ीमेल के लिए एक मर्द का ये कहना कि आई हेल्प यू, ये बहुत बड़ा जेस्चर है, और ये लोगों तक पहुंचना और शायद लोग पसंद करेंगे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप ऐसे कंटेंट और ऐसे सब्जेक्ट को हम और लाएंगे। आई होप, ये मैं प्रोड्यूसर से भी बोल रही हूँ, और आई लव इट। और मैं मम्मा का रोल कर रही हूँ, श्रुति का, एंड आई लव इट। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, बहुत साल से थिएटर कर रही हूँ और एक्टिंग कर रही हूँ, तो आई लव इट, आई लव माई वर्क। मालती ऐसी माँ है जो शायद हर माँ में कहीं ना कहीं होती है, थोड़ी सख्त, थोड़ी नरम, थोड़ी गरम, थोड़ी सी झल्ली भी, ऐसे बाल वाली, बहुत सारा काम करने वाली, सारा बोझ उठाने वाली, और बाद में थोड़ा सा प्यार भी करने वाली। सो पूरा पैकेज है मालती, लेकिन उसमें कड़वापन थोड़ा ज़्यादा है फ़िलहाल। आगे देखते हैं, मज़ा आएगा। एंट्री बड़ी धमाकेदार थी, गुस्सा करते हैं आप, मैं वैसी हूँ नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा करने वाले रोल बहुत अच्छे लगते हैं। श्रुति जा के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, उस बारे में क्या? मैंने श्रुति के साथ पहली बार काम किया है, मैंने उसका काम देखा है, और जब हम पहले दिन मिले, एक आर्टिस्ट के तौर पे या एक स्टार के तौर पे नहीं, वो एक ह्यूमन की तरह मिली, एंड आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। आप कितने भी ऊंचाई पे चले जाएं और कितने भी नीचे वाले बंदे से बात कर रहे हो, लेकिन वो फासला नहीं समझ में आना चाहिए। सो आई लव टू वर्क विथ हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई लाइक हर vulnerability and the frankness. As you mentioned in the first episode, like thought-provoking चीज़ें आई हैं, इंसिडेंट आए, जैसे you said कि मेल का वो जस्ट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा thought-provoking है. So are we expecting more of that in the other episodes, further episodes? I wish, but I don't know how people will take it, because हमारे भारतीय समाज में किसी मर्द का इतना खुल के ये जेस्चर करना
हमारे बाकी औरतों ने ये मम्मियों ने या भाभीयों ने ऐसा बोला नहीं कि बेटा ये जाके लेके आ, तुम कर लेना, हम लेके आएंगे, तुम चिंता मत करो। तो ये एक जो हिस्सा है ना कि पार्टनरशिप वाला, कि हम सब फैमिली है और ये हमारा ही प्रॉब्लम है, हम अलग नहीं हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में, और अगर गांव में हो तो प्लीज़ करिए क्योंकि हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोग आए प्लीज़। ओ हमनवा का एपिसोड आज रिलीज़ हो गया है, क्या कहना चाहिए मैम आपके किरदार के बारे में? मेरे किरदार के बारे में तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले ये कहूँगी कि इस शो में ढेर सारी मेहनत है और बहुत ही प्यारा शो है। कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स को लेकर कहानी आगे बन रही है। रिश्तों की जिस तरह रिश्ते बुने गए हैं वो हर किसी को अपने घर में अपने आसपास नज़र आएंगे। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी है और हमारे प्रोडक्शन हाउस का LSD का स्टार प्लस के साथ बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि दर्शक इसे भर भर के प्यार दे और सराहे, पसंद करे और अपनी राय भी हमें बताते रहे। रहा सवाल मेरे किरदार का, तो मैं रक्षित की माँ प्ले कर रही हूँ। जो हमारा हीरो है शब्बीर, उसकी माँ का किरदार है सुधा भारद्वाज, और हम फिलहाल भारद्वाज हाउस के बाहर ही खड़े हैं। तो देखते रहिए वो हम नवा तुम देना साथ मेरा। शब्बीर और क्षितिजा की काफ़ी बिलव जोड़ी रही है और वो वापस शो में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शायद इसका एहसास आप सबको भी ये पहला एपिसोड देखने के बाद ज़रूर हुआ होगा कि कैसे उनका रिश्ता महकता है स्क्रीन पे। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक वही प्यार उन्हें बार बार देंगे। इसमें टॉपिक बड़ा सीरियस डिस्कस किया, एमनेशिया जो भूलने की बीमारी है। हाँ, वो बोल्ड टॉपिक, अल्जाइमर का। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ब्रिंगिंग इन अ सीरियल लाइक? You know, to answer your question very correctly, don't you think that such topics also should be dealt with because they are contemporary, they are sensitive, they need to get their due importance in a reality check of life. Even in the first episode, the gentleman is so humane to a girl who he really doesn't know, but she needs sanitary towels and he helps her with them. So I think the society has moved on. The pace, the momentum, the openness of thinking is so enthusing today. And if that is showcased in a serial, I think it reaches every household, every kitchen, every family. So I think it is all worth it. Yeah, same with. I mean, we have just viewed a couple of episodes, but there'll be so many such topics, like a girl walking out of a family, which we have whispered in the first episode itself, that she's coming out of a troubled marriage, and how her family accepts her. Don't you think it is so required today? Isn't it? Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Done, ma'am. Thank you. Thank you so much. थैंक यू, बाय, गुड नाइट। यस सर, आज को हमनवा शो लॉन्च हो गया है, फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो गया है, क्या कहना सर? वेरी नाइस है, मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक इट ब्रिंग्स बैक द वाइब विच दीज बोथ ग्रेट एक्टर्स हैव टुगेदर। तो अच्छा लगा मुझे, एंड दो DDLJ मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। तो दे आर प्लेइंग इट टू द गैली इन द फर्स्ट एपिसोड, बट आई थिंक उसमें जो हुक पॉइंट पे छोड़ा है, काफ़ी मतलब कहानी तेज़ी से भी बढ़ती है, एंड आई फील इट्स गोना डू वेल। सो माई बेस्ट विशेस टू LSD, Shabir bhai, Shruti, everybody. First episode has a thought-provoking incident about a male giving that sanitary pad to a female. So what do you have to say about that? Thought-provoking तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है I think that's the new norm, right? So I think we are just accepting all of that and a bit of masala with it जो हम television या film में देते हैं, उससे आप entertaining way से बताते हैं, और क्या? Also, I would like to talk about the song that has been released today of the same beautiful Sorry? Love Jodi. Song released today of the same. The same song, yeah, it's quite nice. I like it. आप क्या कर रहे हैं सर? What are you doing? मैं तो इनको अभी विश करने आया हूँ, मगर मैं खुद की शूट पे जा रहा हूँ। I'm doing a series, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। So just my good wishes to LSD Films and at Star Plus and everybody else. Thank you. Visual का thank you. Perfect. Song
Well, of course, both of them make an amazing pair. The storyline is so nice, and कुछ भी I think positivity के साथ start हो, and I guess that's something LSD is known for. It always has a positive outcome as well. इसमें दो बड़े इंसिडेंट्स के बारे में बात किया है, मेल सेंसिटिविटी, दी हाइजीन एंड ऑल्सो एमनीशिया. दो बड़े सीरियल में लाना, इनवाइट करना, आपको क्या लगता है? I think it's a great thing that topics like these are being taken up, and it's high time that हमारी general entertainment में भी ये topics आएं, so that there's a sort of an infotainment for the people and the audience watching it. And what do you think about the song? थोड़ा विस्तार में बताइए, जल्दी बता रहे हैं. विस्तार में बताऊं? अरे विस्तार में तो I think the right people are the ones who've made it obviously, क्योंकि आप जिस तरह से उसको बताते हो, जिस थॉट से आप उस चीज़ को बनाते हो, दे आर द राइट पीपल विस्तार में बोलने के लिए. मैं एज एन ऑडियंस सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे सकती हूँ सर. I just started it with that कि they are such an amazing pair and they've received so much love. They're such great actors, such senior artists from the industry, and I'm sure they're going to create magic. They already are. Tell us about your upcoming projects. Well, there's something very interesting coming up. थोड़ा सा सबर, but I'm sure it'll be worth the wait. क्या कुछ भी बोलते हो ना आप, हवा में तीर मारते हो. किशन, मैं बताऊंगी किशन. ओवर स्मार्ट मत बनो मेरे साथ. अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट आप लोगों को जल्दी पता चलेगा. Yes, it's coming very soon. नहीं, थोड़ा सबर और. Thank you sir. Thank you. आप बहुत ज़्यादा तैयार लग रहे हैं. सामने सेंटर, सामने देखना मैम. आप बहुत दुबले हो गए. जी श्रुति जी सामने. श्रुति जी यहाँ पे. चलो जब तक बाइट कर लेते. जा. नहीं सर, आगे तो साथ में. हाँ. चलिए. सर सामने. सीएम ले ले, ये लगा. एक सेकंड विजुअल का. भाई कौन ला रहा है? हाथ पीछे नहीं हटेगा. सामने और कितना सामने. जी डन. नहीं नॉट डन. रुकिए. डन. जा. डन. थैंक यू. हम क्या बोलेंगे? अमिता, श्रेखा. हाँ जी. थोड़ा पीछे. आ जाइए. मेरा रेस्टोरेंट तो बिल्कुल. What is their mic thing? आओ आप लोग आओ. सर आइए. Done. Thank you. Come guys, come from. अरे आइए, जल्दी आइए. अनिल, अमन वगैरह सबको बुला दो. See you ma'am. अरे आ जाओ, कम. स्वाति जी, you also come. आ जाओ. ये इनकी भी एंट्री होने वाली है. She's the killer. She's the killer. Angad, come.
Thank you guys. Thank you so much. Thank you. He's a company boss. So, and he's a happen to somebody. You can कुछ भी करा मैं तो करके मेरे सारे कान की वाली दवा फाइनली थैंक यू मेरे को क्या जवाब दे अकेली नारी तीनों पे भारी Yes, आज सवाल पूछिए प्लीज. पूछिए. कोई तो पूछो गाइस. हम लोग सब बहुत खुश हैं पहला एपिसोड देखकर जो सब लोगों ने मेहनत की है उसका फल देखकर मज़ा आ रहा है एंड द ऑडियंस रिएक्शन आल्सो हैज़ बीन वेरी जेनरस और एंड या सो द फुल टीम इज़ रियली एक्साइटेड. पहला एपिसोड में बहुत मज़ा आया. अब दूसरा जो एपिसोड है वो पहले से भी अच्छा है. सेम वी वर वेरी एक्साइटेड. और आज हमने तो पहली बार, इन्होंने तो देखा है पहले, हमने पहली बार देखा है एपिसोड एंड वी रियली एंजॉयड. लाइक you can see that the whole team has come together and really worked hard to put this across and I hope everybody loves it. लेटर आपने लिखा या जो लेटर था हिंदी में उसके आपने लिखा है? आपको क्या लगता है मुझे हिंदी नहीं आती? नहीं मैं पूछ रहा हूँ. इनकी हिंदी बहुत अच्छी है भाई. आप मुझे हर्ट. ये हिंदी को देवनागरी में भी लिख सकती है और इंग्लिश में भी. Yes. क्या बात है क्या. लेकिन आप लोग फिर से बैक किया है, पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मचेगा, क्या कहना चाहिए उसको लेके? सारे दोस्त ही हैं. सब जो इंडस्ट्री में हैं सारे दोस्त हैं. वी आर ऑल रियली एक्साइटेड फॉर वन अनदर. तो जाहिर सी बात है जैसे आप लोगों ने देखा सारे दोस्त लोग मिलने आए हैं. सो इट्स गुड कि वी ऑल लुक आउट फॉर ईच अदर और वी ऑल गॉट ईच अदर्स बैक. जब आप लोगों को पता चला एक साथ आप दोनों आने वाले हैं तो क्या था मतलब? अरे इनसे डिसाइड करके ही पता किया था. दोनों से डिस्कस करके ही किया था. इट वाज नेवर अ सरप्राइज. वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्रेटफुल कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा that I'll get to work with Shabbir again. And thanks to Prateek's amazing idea that this is happening. Yeah, it's all thanks to Prateek. Yeah. It's all of us have discussed this. मतलब सबसे पहला फ़ोन शब्बीर भाई को गया. I asked him कि क्या हम श्रुति से बात कर सकते हैं. श्रुति से मैं ऑलरेडी पहले किसी एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था. Unfortunately that didn't happen. Actually fortunately that didn't happen. We are very happy that it didn't happen. So ये आइडिया आया. फिर हमने सबने बैठ के थोड़ा विचार विमर्श किया, मंत्रणा की, थोड़ा मतलब उस पर हमारी हिंदी अच्छी है, हम एमपी वाले, ठीक है. सो इसीलिए जब हम लोगों ने सबने बातचीत करी और वी डिसाइडेड कि हमें ऐसा कुछ करना है जो थोड़ा अलग भी हो और एंटरटेनिंग. कितना टीआरपी के लिए हम आपको मुझे मत बोलिए. ये इसका जो जवाब है आपको ऑडियंस ही देगा अगर उन्हें अच्छी लगेगी. तो आपके एक्सपेक्टेशन तो मुझे तो यहाँ नहीं ऊपर आसमान में होना चाहिए. So yeah, so it's all in the hands of the audience and the viewers. देखा कि दो इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बताया गया है. एक तो अमनीशिया, दूसरा ह्यूमन सेंसिटिविटी, मेल सेंसिटिविटी, अल्जाइमर. तो उसके बारे में क्या very bold to do in a series में करना. So our show is going to deal with a lot of problems that affect people in daily lives. मतलब हमारा शो जो है वो किसी एक ऐसे मुद्दे पर नहीं है जो किसी एक समाज से सीमित हो. इट्स अ वेरी कॉमन मैन्स प्रॉब्लम. जो आपका शायद प्रॉब्लम होगा, हमारा होगा, हम सबका प्रॉब्लम होगा. वी डील विद दैट एंड हमारी कोशिश यही है कि हम उस मुद्दे को ज़्यादा हैवी ना करके पर एक अवेयरनेस जगाएं. डिटो आई थिंक वही लाइक ही सेड इट्स दिस फॉर सम पीपल हमारे लिए नया इशू होगा. फॉर सम पीपल इट्स एन एवरीडे प्रॉब्लम. बट वो एवरीडे उनके लिए कितना मुश्किल होता है अगर वो किसी कहानी में देखते. इट्स लाइक अ वार्म हग टू पीपल हु आर डीलिंग विद दीज इश्यूज बट इन अ लाइट वे, ताकि उनको भी पता चले कि वी हैव
empathy for everyone. सर विलन कौन है शो में? विलन मैं। विलन कौन होगा मतलब? यही होंगे क्योंकि ये हमें मिलने नहीं देंगे। राइट नहीं विलन है, एक नहीं बहुत सारे विलन हैं, एंड दोज आर विलन्स फॉर द सिचुएशन। मतलब जब हम एक कहानी कहते हैं तो रियल लाइफ से थोड़ा सा एग्जैजरेशन करने की कोशिश करते हैं, जो हमने इस कहानी में बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, जो इनके पति का किरदार प्ले कर रहे हैं मनोज चंदेला, वो कहानी में एक नेगेटिव एलिमेंट लेकर आएंगे। जो आई वाज सपोज्ड टू से दैट, I don't know. I was asking if you're supposed to. ओके सॉरी, तो वो काट सकते हैं क्या? अच्छा, आप तो ज़्यादा दिखा दो। अब ये भी दिखा सकते हैं, आप काट सकते हो। ओके सो वो हैं। फिर आपने मनीषा जी जो रोल प्ले करी हैं शीला का, वो देखा है। फिर अभी कहानी में तान्या आने वाली हैं, तान्या शर्मा। देन देयर इज संभावना मोहंती। देन बहुत सारे लोग कहानी का हिस्सा हैं, जो मिक्की डुडानी इज देयर। देखिए, कोई किसी को परेशान नहीं करने वाला है, हर किरदार की एक कहानी है। जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में देखा, फर्स्ट एपिसोड जब मैंने पहली बार देखा था, मतलब मेरी टीम के साथ में, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। यूजुअली हम लोग लार्जर देन लाइफ हाई ड्रामा शोज बनाते हैं, ये एपिसोड देखते टाइम जो एक स्माइल थी चेहरे पे, द मोमेंट। आई थिंक टीवी का पहला शो होगा आज तक जितने शो आए हैं जिसमें सिर्फ हीरो हीरोइन ही दिखे हैं आपको पहले एपिसोड के अंदर। आपने किसी को नहीं दूसरे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें पता था आर यूएसपी इज़ टू गेट these two people together, so वो हमने पूरी तरह से खुल के खेला है। वी आर नॉट हाइडिंग एनी कार्ड्स। कहानी अजम्पशंस पे नहीं छोड़ी गई है, कहानी किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं की गई है। एंड व्हेन वी हैव दीज टू, तो शो तो चल रही है। यस, साथ आपका गाना आ गया, उस गाने के बारे में बहुत ही प्यारा गाना है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय जावेद अली सर, and we are really excited because we have used it as part of a promotion for the film, और साथ ही साथ में जिस तरीके से we have shot the song is just beautiful। सर आप नंबर 1 मतलब प्रोड्यूसर नंबर 1 बनते जा रहे हैं, आपके शो बैक टू बैक सुमन इंदौरी हो, तुमसे तुम तक, और अब ये शो काफ़ी आप मतलब हायर लेवल पहुँचते जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये थोड़ा सा मुझे एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट लगता है। अरे स्कैंडल नंबर 1 है। नहीं, द थिंग इज दैट ना, देखिए, वी एज प्रोड्यूसर्स, एज राइटर्स, एज एक्टर्स, वी ऑल आर ओनली एज गुड एज आर लास्ट शो। सो हम कोशिश करते हैं जो भी हम शो बनाएं वो पिछले से थोड़ा बेहतर हो, इतना ही काफ़ी है। इस शो की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो जैसे कि तुमसे तुम तक के टाइम पे आई गेव क्रेडिट टू अतुल केतकर सर, बिकॉज ही वॉज द ओरिजिनल आइडिएटर ऑफ द शो। इस शो का if not more, at least 70% credit goes to Ekta ma'am, because she was the one who did literally 70% of our job, and we have to, बहुत प्रेशर है क्योंकि जिस मुकाम पे इन दोनों के किरदार को ले जाके उन्होंने छोड़ा था, उसे आगे लेके जाना मेरे लिए बहुत प्रेशर वाली चीज़ है, मेरे राइटर्स के लिए, इन दोनों के लिए भी वही बहुत बड़ी प्रेशर वाली चीज़ है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो ये नंबर 1 नंबर 2 शो चले, पैसा आए, दैट्स इट। Thank you. शबीर भाई एक क्वेश्चन